Let us pray. Lord, we thank you in this one life you give us. You give us each one opportunities to do something for you in this short life here on earth. प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी छोटी सी ज़िंदगी में हम में से हर एक को ये मौका दिया है कि आपके लिए हम कुछ कर पाएं। Even as we'll stand before you, you'll surely ask, what did you do for me? प्रभु, जब आपके सामने खड़े होंगे आप निश्चय सवाल पूछेंगे, तुमने मेरे लिए क्या किया। Lord, we pray you've given us many talents and different scenarios. Thank you. We can use it to glorify your name. प्रभु, अनेक भागों में आपने हमें अनेक तरह की योग्यताएं दी हैं, वो सब आपके नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर पाएँ, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Speak to us through your living word, we pray in Jesus' name. Amen. आपसे विनती करते हैं यीशु के नाम में कि हम सब आपके लिए कर पाएँ। आमीन। Let us turn to Luke chapter 24. आइए अपना ध्यान लगाएं लूका 24वें अध्याय Here पर। we see verse 13, and behold, two of them went the same day to the village called Emmaus, which was from Jerusalem at 60 furlongs. 13वां पद, लूका 24वां अध्याय 13वां पद। देखो, उसी दिन में से दो व्यक्ति एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। And they talked together of all these things which had happened. और वे इन सब घटनाओं के बारे में बातें करते जा रहे थे। And it came to pass while they communed together and reasoned, Jesus himself stood near and went with them. 15वां पद, ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, तो यीशु स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा। And their eyes were holden that they should not know him. He said unto them, what manner of communication are these that ye have one with another as ye walk and are sad? परंतु उसे पहचानने को उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। उसने उनसे कहा, तुम चलते हो परस्पर ये सब क्या बातें कर रहे हो। और वे उदास होकर खड़े रह It's गए। interesting today, the communication of people seem to have no hope. आज लोगों की बातचीत में जरा से भी आशा नहीं नजर आती। You turn on the news, all kinds of sad news. आप खबरों को देखिए, हर तरह की निराशा की खबरें ही सुनने को मिलती हैं। It seems as if everything is full of despair all around, people hiding in their basements from the coronavirus. चारों तरफ से नजर आता है, लोग बड़े निराशा में जी रहे हैं। लोग अपने तहखानों में जाकर कोरोना वायरस से बचने के लिए तहखानों में जी रहे हैं। And on and on and on, and too scared to come out. It's amazing. और लोग ऐसे और बहुत डरे हुए हैं बाहर निकलने से। बड़ी अजीब बात है। So people are full of sadness and despair. लोग बड़े निराशा से और दुख से भरे हुए हैं। But here we see the disciples, as they were walking on the way to Emmaus, as the Lord was listening to their conversation. और यहाँ पर ये जो चेले जब एमाउस को चलते हुए जा रहे थे, तो प्रभु आकर उनकी बातचीत सुनने लगे। That he asked them, hey, why you guys so, when you walk, why are you so sad? Why are you so sad? और प्रभु उनसे पूछने लगे, अरे तुम लोग जा रहे चलते हुए, तुम इतने निराश क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो तुम। And then they said, hey, what is it? Don't you know what happened? Or you must be a stranger here in Jerusalem. You're not tied into what's going on. और फिर वो उनसे पूछने लगे, वो क्या तू अकेला इस व्यक्ति यरूशलेम में आया हुआ जिनको बातें जो इन दिनों में यहाँ हुई हैं अनजान है, क्या आपको मालूम नहीं है क्या हुआ है। Well, Jesus was fully tied into what was going on. He was aware of the scenario. The Lord's always aware of the scenario. He knows more than you or me or anyone knows. और प्रभु तो हर बात को, क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, क्या चल रहा है, हर बात को जानता है। आपसे और मुझसे बढ़कर हर चीज को, कहाँ क्या हो रहा है, प्रभु जानता है। He was aware of the scenario. And so here when the disciples told him, hey, don't you know, aren't you connected to what's going on, Lord? और प्रभु पूरी हालत को जानते थे। और ये लोग कहने लगे, प्रभु आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है आसपास, क्या चल रहा है। They didn't know he was the Lord, but he's a stranger walking along and say, hey, are you a stranger in Jerusalem? You haven't been around? वो तो पहचान नहीं पाए कि प्रभु है। उन्हें लगा कोई अजनबी आदमी है। बोले, आप क्या यहाँ पर अजनबी हो, आपको मालूम नहीं यरूशलेम में क्या हो रहा है, हाल ही हाल में क्या घटनाएं घट रही हैं। You don't know what's transpired in Jerusalem, how they accused the Lord Jesus. आपको मालूम नहीं यरूशलेम में क्या हुआ, किस तरह से यीशु पर झूठा आरोप लगाया गया।
You know, prophet uh, verse 19, he said unto them, what things? You know, Jesus knew what had happened. 19वें पद में प्रभु ने उनसे कहा, कौन सी बात? प्रभु यीशु तो सब जानते थे, फिर भी सवाल पूछा उनसे। You know, it's interesting. Sometimes, you know, you ask, you know what's happened, but you ask someone, so what happened? और कई बार आपको सब मालूम होता है क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप सवाल पूछते हैं, अरे क्या हुआ, बताओ यार क्या हुआ। And you know, in the place of work, you can do this many times, and so they'll tell you, and then immediately know whether they're telling you what actually happened or not. When you know what actually happened, काम की जगह कई बार आप इस तरह से करते हो, आप उनसे पूछते हो, अरे क्या हुआ, आपको पहले मालूम है सब कुछ, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि इनको मालूम है या नहीं मालूम है क्या हो रहा है। you ask someone, hey, so what happened? And they tell you, you know whether there's someone who can be trusted or not, और आप उनसे पूछो, अरे you भाई, know, by what they say. और आप उनसे पूछो भाई क्या हुआ, और उनके जवाब देने पर आपको पता चलता है कि ये भरोसेमंद है कि नहीं है। उस बात से जो वो कहते हैं उससे आपको पता चलता है। If they tell you, hey, yeah, that's what happened, boom, you know what, they're trustworthy. अगर वो आपको सही से बताएं क्या हुआ, तो आपको एकदम पता चल जाता है ये भरोसेमंद लोग हैं। But if they change the story, then you know, oh man, this guy, you have to be careful of them. लेकिन अगर वो अपनी कहानी बदल के सुनाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ता, हाँ ये आदमी भाई आगे पीछे करता है, इससे They, सावधान रहने की they जरूरत है। don't shoot, play ball with a straight bat. They're crooked. वो They'll spin words. ये सीधे बल्ले से नहीं खेलते, ये बातों को टेढ़ा मेढ़ा करके सुनाते हैं। You know, it's amazing to see the media spin words. You know, someone says something and the media takes off and totally changes the meaning of what the man said to something totally different. That's deceit. और ये मीडिया को देखिए, आदमी ने कुछ कहा होगा, उसको लेके उस पे अपनी बातें जोड़ के उसको टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसा दिखाएंगे जैसा उस आदमी ने कहा, बिल्कुल उससे अलग बात। उसका कुछ उससे दोनों का चीज़ों का नाता नहीं है, लेकिन मीडिया इस तरह से उसको दिखाएगा। And today we see it all around us. आज अपने So चारों Jesus said, Jesus knew what had happened. So, Jesus said unto them, what things? What are you talking about? और हमारे चारों तरफ आजकल ये होता है, और प्रभु यीशु सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, बताओ किस बारे में तुम बात कर रहे हो। He knew, but he said, what things? वो जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कौन सी बात। And they answered, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all people. और उन्होंने कहा यीशु नासरी के बारे में, जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की दृष्टि में काम और वचन में सर्व सामर्थी नबी था। And how the chief priests and rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. और कैसे हमारे मुख्य याजकों अधिकारियों ने उसे किस तरह पकड़वाया, मृत्युदंड के योग्य ठहराकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel, and beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre, and they found not his body, and they came saying that they had also seen a vision of angels, which said he was alive. 21वां पद, परंतु हम तो आशा कर रहे थे कि वही इजराइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है। वास्तव में इन सब बातों की अपेक्षा इन घटना को घटित हुए आज तीसरा दिन हो चुका है, परंतु हमारे साथ की कुछ स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। जब वे प्रातःकाल तड़के कब्र पर गई और उसके शव को नहीं पाया, तो यह कहते हुए आए कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन भी पाया है, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। So here the disciples told the Lord what was going on. और यहाँ पर चेलों ने प्रभु को बताया क्या चल रहा है वहाँ पर। He knew what had gone on. Jesus was fully aware of what happened. यीशु को पूरी तरह मालूम था क्या चल रहा है और क्या हुआ है। And what was happening in Jerusalem. You know, the Lord knows what's happening in our lives. The Lord knows what's happening in society. The Lord knows what's happening around the world. He's got it under control. His control. प्रभु को मालूम था यरूशलेम में क्या हो रहा है, प्रभु को मालूम हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमारे शहरों में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और सब चीज़ें उसके अधिकार में हैं। And just like here,
You think, oh, the Lord didn't have much in his control. Of course not. He was above it all. और यहाँ मानो ऐसा लग रहा हो कि अरे प्रभु के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो बात सच नहीं। सच्चाई ये है कि प्रभु सब चीज़ों के ऊपर है, सारा अधिकार उसके हाथ में है। And so, so the disciples, from their vantage point, yeah, the Jesus of Nazareth, we expected him. He was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. चेलों के नज़र में तो उन्होंने कहा, हमारे नज़रिए से तो वो परमेश्वर का सामर्थी नबी था, वचन में और काम में, और वो इज़राइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है, ये हमने सोचा। But we trusted that he should have redeemed Israel, and beside, they looked for the redemption of Israel. और बोले हम तो ये आशा कर रहे थे कि ये इज़राइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है, हम तो आस लगाए थे कि इज़राइल का अब छुटकारा होगा। But beside all this, today is the third day since these things be done. और बोले आज तीसरा दिन हो गया इन सब घटनाओं को घटे हुए। So, hey, he was the king of the Jews. We were expecting him to, be the mighty one. But guess what? He was crucified. बोले वो तो इज़राइल का राजा था, वो तो सामर्थी था, लेकिन देखो क्या हुआ, उसने क्रूस पर मार डाला गया। With no, he was innocent, but he was crucified. वो तो निर्दोष था, फिर भी उसको क्रूस पर मार डाला गया। So, in their sadness, they were recalling all what was going on. अपने दुख में वो याद कर रहे थे क्या क्या हुआ। Lord, well, they didn't know it was the Lord standing next to them, and they were telling him. उन्हें तो पता नहीं था कि प्रभु से बात कर रहे हैं, लेकिन वो उससे बता रहे हैं क्या क्या हुआ। With much no hope. They were sad, no hope. Hey, this is all what's going on all around us. What's going to befall us? What's going to happen to us? और बड़े निराश थे वो, उनकी आशा चली गई। बोले हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, चारों तरफ ऐसा है, कुछ भी अब आशा नहीं बची है। What's going to happen? This, that, and the other. We were expecting this, but look what's befallen us. अरे हम तो ये आश लगा रहे थे ऐसा ऐसा होगा, लेकिन देखो हम पर क्या आन पड़ी। It's interesting, as Jesus heard them out, when we pray, the Lord hears us out. और प्रभु ने उनकी बातों को सुना। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी बात को सुनता है। That's one thing with praying. God hears our prayer. प्रार्थना के साथ ये बात है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। He hears us, but he knows the big picture. So he listens to our small thinking, our small thoughts, our small requests. प्रभु हमारी सुन लेता है, हमारी छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी ज़रूरत, हमारी छोटी मांग, वो सब सुन लेता है। Our small scenario. Oh Lord, the ceiling is falling on my head. हमारी छोटी सी घटना, अरे प्रभु देखिए छत मेरे सिर पे गिर रही है। It's like a little mouse running through the grass, and a leaf falls on his head. Oh man, the sky's falling. मानो एक छोटा सा चूहा ऐसा बगीचे में दौड़ता हुआ जा रहा हो, घास के बीच में से अचानक उसके ऊपर एक पत्ता आके गिरे, वो बोलेगा अरे आकाश मेरे सिर पे गिर गया, आसमान मेरे ऊपर सिर पे गिर गया। Well, Jesus knew what was going on, and so as they recalled of all what happened, what Jesus answered. और यीशु सब जानते थे क्या हुआ, इन लोगों ने सब याद करके बता रहे थे क्या क्या हुआ, और तब यीशु ने जवाब दिया। Verse 25, he said unto them, O fool and slow of heart, fools and slow of heart to believe all that the prophets had spoken. 25वें पद में प्रभु ने जवाब देते उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों। Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? क्या मसीह के लिए आवश्यक न था कि यह सब दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? So here, the Lord came back with a rebuke. He listened to them, he heard them out, and then he rebuked them. He called them fools.
प्रभु ने उनकी बात सुनी, उन पर ध्यान दिया, लेकिन उस पर जवाब देके उनको डांट मारी और कहा, हे बेवकूफो। Man, you know, today we think so highly of ourselves. If someone calls us a fool, we get offended. आजकल हम अपने बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं, अगर कोई हमको बेवकूफ़ कह देगा ना तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। You know, today men is so full of bluster, you know, they talk way over their head. आज आदमी का दिमाग घमंड से चढ़ा हुआ है, अपने ऊंचे से अपने नाप से ऊंचा बोलते हैं। And, you know, they think maybe because of a fat wallet or maybe a big degree or big position or something else, hey, we know what's going on. No, we don't. We're small. हो सकता है उनका बटुआ मोटा है या बड़ी डिग्री है या कुछ और है, जिसकी वजह से वो कहते हैं अरे हमें सब मालूम है, लेकिन असलियत क्या है उन्हें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। And here we see the Lord said to the disciples, "O fools and slow of heart." और देखो प्रभु ने यहाँ इन लोगों को कहा, अरे ये बेवकूफ़ो, समझ में धीमे। You know, hey, you guys don't get it. अरे देखो तुमको समझ में नहीं आया। In other words, you know, if you talk about the lingo of today, you know, Jesus said, you know, "Oh fools," those strong words, "Oh fools." और आजकल जिस बोलचाल में हम मानेंगे तो प्रभु ने जो बात कही है वो बड़ी कठोर नजर आएगी। कह रहे बेवकूफ़ो, Man, you're so small-minded. Man, you're so in your cocoon. Oh man, you don't have a clue what's going on. अरे तेरी छोटी सोच है, तेरी छोटी नज़र है, तेरे को कुछ दिखता नहीं है और तुझे मालूम नहीं हो क्या रहा है चारों तरफ। You think you do. You know, they were asking Jesus, "Hey, you must be a stranger around here." They didn't know it was the Lord. और प्रभु यीशु से उन्होंने कहा, लगता है तू अजनबी है यहाँ पे, तुझे कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है आसपास। उन्हें मालूम नहीं था कि ये प्रभु है जिससे वो बात कर रहे हैं। So they thought, man, we know all what's going on. This guy doesn't have a clue. और ये लोग सोच रहे थे, अरे भाई हमें ही सब कुछ मालूम है क्या हो रहा है, इस आदमी को जरा सी भनक भी नहीं है कि हो क्या रहा है। His questions to us, but really it was the reverse. Jesus knew everything. और जैसा सवाल प्रभु ने पूछा था उस पर ये लोग सोचने लगे, लेकिन असलियत क्या थी कि प्रभु यीशु को सब कुछ मालूम था। The guys, the disciples, didn't have a clue. चेलों को भनक नहीं थी कि क्या चल रहा है। And so that's what Jesus said. और यही बात प्रभु यीशु ने कही। You know, he turns the tables. He said, hey, you know, oh fools प्रभु ने and पासा slow of heart to believe all that the prophets have spoken. प्रभु ने पासा पलट कर कहा, अरे बेवकूफ़ो, नबियों ने जो बातें कही हैं उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों। So here Jesus called the disciples fools. Oh fool. यहाँ प्रभु ने अपने चेलों को कहा, बेवकूफ़ो, निर्बुद्धियों। Man, you're so small-minded in your thinking, in your ways, in तुम your thoughts. तुम अपनी सोच में, अपनी चाल में, कितने छोटी सोच है तुम्हारी, कितना छोटा तुम्हारा नजरिया है। You know, and so, hey, why? Why did Jesus call them fools and slow of heart? प्रभु यीशु ने क्यों कहा उनको कि बेवकूफ़ हैं, समझने में धीमे हैं। To believe all that the prophets have spoken. You know, so in other words, the scriptures. जो बातें नबियों ने कही हैं वो नहीं समझ में आ रही। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है इनको। You know why you're so foolish? Because you haven't believed the scripture. आप जानते हो तुम मूर्ख क्यों हो? क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन पर, बाइबल पर विश्वास नहीं किया है। You know, and that's why I always say, hey, we believe fake news. You know, you turn on the news or read something in the internet and we think, oh man, that's gospel truth. हम लोग कैसे लोग हैं? हम तो झूठी खबरों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इंटरनेट पे जाएंगे या टीवी देखेंगे, इंटरनेट पे जो कुछ पढ़ा, अरे हमको मालूम चल गया असलियत क्या है। But then when we come to God's word, we think it's fake news. लेकिन जब परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो झूठी खबर है, इसमें जो लिखा है ये सच थोड़ी ना है। When really it's the reverse way around. असलियत में बात उल्टी है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, बाहरी खबरें झूठी हैं।
all of man's bluff is fake news, and आदमी God's word is real. आदमी का बड़बोलापन सारी झूठी खबर है और परमेश्वर का वचन ही सच्ची खबर है। And here's what Jesus was saying. और ये बात यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं। Hey, you know, you've been foolish, you're slow of heart, you know. What do you do with a kid who doesn't learn? अरे तुम सोच में धीमे हो, समझने में धीमे हो। एक बच्चा सीखना नहीं चाहे तो आप क्या करोगे उसके साथ? You know, the first grade teacher says, "Oh man, should I hold this kid back for another year to repeat grade 1, or do पहले I के send them on to grade 2?" टीचर सोचता है, अरे इसको पहली में ही रखूं या इसको दूसरी में भेजूं, इसकी क्या करूं इसके साथ, वो सोचता है। You know, they're really slow. Well, okay, a kid, there might be reasons why a kid is slow, but here was the Lord talking to the disciples who were adults. और बच्चा है, चलो बच्चे के लिए तो कोई कारण हो सकता है, शुरू में उसको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ प्रभु बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, चेलों से बात कर रहे हैं। Hey, why are you so slow? अरे Why तुम is लोग your understanding so pathetically deficient? तुम्हारी समझ इतनी धीमी क्यों है? इतनी बुरी तरह से इतनी छोटी समझ तुम्हारी क्यों है? You know why? Because you haven't believed what the prophets have said. जानते हो ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि तुमने उस बात पर विश्वास नहीं किया जो नबियों ने कही है। You know, you haven't believed in my word. You treated my word like a bunch of fake news. तुमने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया, मेरी बातों को, मेरे वचन को तुमने ऐसे माना जैसे झूठी खबर हो। That's why you're in your dumb position. इसलिए आज तुम इस बेवकूफ़ी वाली हालत में हो। You know, today people, like I told you many a time, but you know, I worked with a friend, you know. जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं एक दोस्त के साथ जब मैं काम कर रहा था, His one of his people in the family had written, you know, some articles in the which had been published in the Harvard Review, so he had this chip on his shoulder. और उसके रिश्तेदारों में से किसी ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर, जो बहुत बड़ी एक मैगजीन है, उसमें कुछ आर्टिकल लिखे थे, तो उसको लेके बड़े उसमें अहम था। So he was, you know, that was his claim to fame, you know, and or he had written an article. That's right. उसने ऐसे एक आर्टिकल लिखा था, तो ये उसकी मशहूरी का चिन्ह था, Which had been written in the Harvard Review, and so he had this chip on his shoulder, and उसने इतनी बड़ी मैगजीन में एक ऐसा बात लिखी है, ऐसा सोच के वो बड़ा, मतलब मैं you नाम know, कमाना he वाला knew me, and he knew my performance, and you know, and at the place of work. और काम की जगह मेरे काम को और मेरे काम की योग्यता को जानता था। But this guy, you know, while driving by a church one day in a lovely country setting, a lovely place, we went around the corner, and और एक बार मैं उसके साथ जब मैं जा रहा था, तो हम गांव देहाती इलाके से जा रहे थे, वहाँ पे एक चर्च देखी, बड़ी सुंदर चर्च की बिल्डिंग थी वहाँ पे। जब उस देहाती इलाके से हम गुजर रहे थे, I was riding along. Oh, what a lovely church! It looks so great, you know. And I was admiring it. I was thinking of all the people who would go there, and this, that, and the other. And man, that's great. So, John, you know, only weak people go to church. और मैं वो इमारत देखी, मेरे दिल में बात गुजर रही थी, अरे यहाँ के देहात के इलाके के लोग यहाँ पे जाके प्रभु की आराधना करते हो, कितना सुंदर है, कितना सुंदर जगह होगी। ऐसे मेरे मन में चल रहा था। ये आदमी बोला, अरे जॉन, कमज़ोर लोग ही चर्च में जाते हैं। I looked at him. I don't agree with you one bit. मैंने उससे कहा, मैं तेरी बात को 1% भी नहीं मानता, सहमत नहीं हूँ मैं तेरी बात से। You know, for me, he was full of hot air. मेरे लिए तो गर्म हवा का भरा हुआ गुब्बारा जैसा होता है, वैसे ही था। Because guess what? I knew he didn't have a clue about what he was talking about.
क्यों ऐसा था? क्योंकि मुझे मालूम था, इसको मालूम नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। But here we see Jesus said, hey, you guys are so foolish and slow of heart because you haven't believed what the prophet, my word. You haven't believed my word. प्रभु ने कहा, हे निर्बुद्धियो, हे बेवकूफो, तुम्हारी समझ इतनी धीमी है क्योंकि तुमने नबियों की और मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। So you're dumb. You know, when we don't believe God's word, we're actually dumb. और जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते तो सचमुच में हम मूर्ख बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। Because our understanding is like a kindergarten understanding. क्योंकि हमारी समझ तो ऐसी हो जाती है जैसे नर्सरी के बच्चों की होती है, बालवाड़ी के बच्चों की समझ होती है, वैसी That's why हमारी हो जाती है। Jesus says, you know, God's, man's wisdom, so the smartest of man is foolishness with God. We're at the bottom of God's scale. इसलिए प्रभु का वचन बाइबल कहता है कि जो सबसे बुद्धिमान आदमी है, आदमी की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। परमेश्वर के समझ के पैमाने पे वो नीचे रहती है, कुछ उसका कीमत नहीं है। So when we humble ourselves, guess what? And we believe the scripture, guess what? We're no more on the man scale. और जब हम अपने आप को नम्र करके दीन करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो हम आदमी के समझ के पैमाने पे नहीं The रहते। dumb scale, आदमी का बुद्धि का the पैमाना low end मूर्खता है। scale, the failure scale, bottom of the line, और जो ये पैमाना है सबसे नीचा है, सबसे निचले स्तर का है। we're all of a sudden in a level far greater in wisdom and understanding because we believe in God's word. क्योंकि समझ के पैमाने पे अचानक हम ऊंचे चले जाते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया है। That's exactly what happened with Daniel. ठीक ऐसा ही दानियल के साथ हुआ था। The wisdom of the gods, that's what the heathen around him said. The wisdom of the gods are in you. और गैर यहूदी उसके चारों तरफ कहते थे, अरे भगवानों की जो बुद्धि है वो तेरे अंदर है। You know, Daniel, he feared God. He communed with God. God's word was far more of greater, more importance than the word of the king. दानियल परमेश्वर का वचन मानता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था और परमेश्वर का वचन उसके सामने राजा की बात से भी ऊंचा था। So when the king decree came out, hey, don't pray to anyone but me, did that have any impact on what Daniel did? No, he opened his windows 3 times a day and prayed. और जब ये कानून पारित हुआ, राजा ने पारित करवाया कि भाई तुम किसी से प्रार्थना नहीं करोगे, लेकिन दानियल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दिन में 3 बार अपनी खिड़की खोल के उसने जीवते परमेश्वर से प्रार्थना की। You know, the aspect of discipline, the aspect of, going to God consistent और ये in अनुशासन, his life. उसकी जिंदगी में अनुशासन था। नियत समय पर वो परमेश्वर के पास बैठता था उनकी सुनने समझने के लिए। And so guess what? He was in the scale of God's understanding. So everyone around him said, hey, this guy is far smarter than all of us. परमेश्वर के समझ के पैमाने पर दानियल बड़ा ऊंचा था, इसलिए आसपास के लोगों ने भी पहचाना, बोला यार ये तो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। Well, it wasn't Daniel, it was Daniel's God, which made him smarter because Daniel was humble enough वो दानियल नहीं to था, believe the words of the Lord. वो दानियल नहीं था, वो दानियल के परमेश्वर था जिसने उसको बुद्धि दी, क्योंकि दानियल ने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। He could have easily said, oh man, I'm a great guy. I'm second in the command in the nation. I'm the latest and greatest. I'm the smartest of all. वो तो कह सकता था, अरे मैं तो देश में राज में दूसरे नंबर पे हूँ, मैं ही सबसे मुखिया हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ। And on, his head could have become Humpty Dumpty, big head. उसका सिर तो अभिमान से फूल सकता था। Many times, you take little small people, give them something, man, their heads put them in a position of importance, boom, their heads swell up.
कुछ लोगों को लो, छोटे लोग, जरा सा भी उनको जिम्मेवारी की जगह दे दी या कोई ऐसी जगह जहाँ पे उनके अधिकार दे दिया, उनका सिर फूल जाता है घमंड से। No humility. जरा सी नम्रता नहीं। But Daniel, did he elude that air at all? No. क्या दानियल ने अपनी ऐसी हवा बनाई? नहीं बनाई। He worshiped the Lord. His God was great in his sight. In Daniel's eyes, he was small, but his God was great. लेकिन दानियल की निगाह में उसका परमेश्वर बड़ा था, वो खुद छोटा था। So, with such a great God, even the king seemed to be a small entity. ऐसे बड़े परमेश्वर के सामने राजा भी एक छोटी सी चीज नजर आ रहा था। That's what happens. The world becomes small when our God is large. और ये सच में ऐसा होता है। ये दुनिया छोटी नजर आती है जब सच्चाई में परमेश्वर हमारी निगाह में बड़ा हो। When our God is small, the world becomes large. जब हमारी निगाह में हमारा परमेश्वर छोटा हो तो ये दुनिया की ताकत बड़ी दिखती है। And most people, that's the second scenario is the right scenario to put them under. Which bucket do you belong in? Do you have a great God? When you have a great God, the world is small. Everything else is small. दुनिया के अधिकतर लोग इस दूसरी तरह की सोच के लोग हैं। आप जरा रखो, जिसका परमेश्वर बड़ा होता है उसके सामने दुनिया छोटी नजर आती है। But then, if you're in the other bucket, which most people are in, their अगर God is small and they're great, and the world is great in their eyes. अगर आप दूसरे पलड़े में हो जिसमें परमेश्वर छोटा है, दुनिया बड़ी है, तो उनको दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है। दुनिया ही सब कुछ है। And the wisdom of man is, like a towering tower of strength. और आदमी की समझ And their God is very small. उनकी निगाह में आदमी की समझ ही मजबूत स्तंभ नजर आती है और परमेश्वर छोटा, उसकी समझ छोटी। We're either in one category or another. हम दोनों में से एक भाग में रहेंगे। Here, Daniel's God was great. Daniel was small in his own eyes. यहाँ दानियल अपनी निगाह में छोटा और उसका परमेश्वर बड़ा था। That's why Samuel said to Saul, hey, when you were small in your own eyes, then God lifted you. यही बात शमूएल ने राजा शाऊल से कही थी, देख जब तू अपनी निगाह में छोटा था तब परमेश्वर ने तेरे को ऊंचा किया। Now you become big in your own eyes. You no more care to hear and obey the word of God. अब तू अपनी निगाह में बड़ा हो गया है। अब तू इस बात की परवाह नहीं करता कि तू परमेश्वर का वचन सुने और उसका आज्ञा पालन करे। इसकी परवाह नहीं है तुझे अब। When Saul first became king, जब शाऊल पहले राजा बना, he had gone to Samuel. Hey, before he couldn't find his father. He had been sent on a mission to find his father's donkeys, which had disappeared. So he hunted all over, couldn't find it. He said, hey, let me go to the prophet. Maybe he'll help me. That level of faith was in Saul's heart. So he went. और जब पहली बार शाऊल अपने पिताजी के खोए हुए गधों को ढूंढ रहा था, बहुत जगह ढूंढा, नहीं मिले, तब उसने सोचा अरे यहाँ पर नबी है परमेश्वर का, जाके उससे पूछता हूँ, हो सकता मदद मिले। उस समय उसमें परमेश्वर के नबी में एक विश्वास था उसके अंदर। I said, Samuel, I'm looking for the donkeys of my dad. Can you guide me? Do you have a word from the Lord? उसने कहा है नबी, मैं अपने पिताजी के खोए हुए गधों को ढूंढ रहा हूँ, आपको अगर कुछ मालूम हो तो आप पता करके मुझे बताओ। Yeah, the donkeys have been found, Saul, but God has a much greater plan for you. हाँ शाऊल, तेरे पिता के गधे तो मिल गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने तेरे लिए उससे बड़ी योजना बनाई है। And then, when they went to look for Saul to anoint him, he couldn't be found. He was hiding in a tent. और जब शाऊल को राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक करने वाले थे, उसे ढूंढने लगे और मिला नहीं है, वो पीछे भूसे में छिपा हुआ था। He wasn't a guy to push himself. Hey, I'm the man. I'm the greatest. I'll be the king. I'll be a good king. No. वो ऐसा आदमी नहीं था जो अपने आप बढ़ावा दे रहा हो, अरे मैं ही आदमी हूँ भाई, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही राजा बनाओ तुम, मैं ही राजा बनने लायक हूँ। He was in the back. He was hiding. They pulled Saul out and anointed him king.
वो तो पिछवाड़े में था। वो लेकर आए शाऊल को, तब उसका राज्याभिषेक किया। But then initially, he he respected God's word. He obeyed God's word when he was small in his own eyes. जब वो अपनी निगाह में छोटा था, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया, परमेश्वर के वचन का आदर किया। But then when he became big in his own eyes, guess what? God took the kingdom away from him. और जब अपनी निगाह में बड़ा हो गया, तब परमेश्वर ने उसके हाथ से राज्य ले लिया। Hey, you know, and Samuel said, hey, when you were small in your own eyes, और शमूएल God lifted you शमूएल ने उससे to be कहा king over Israel. शमूएल ने उससे कहा, देख, तू अपनी निगाह में जब छोटा था, परमेश्वर ने तुझे उठाया और तुझे इज़राइल का राजा बनाया। But now that you're big in your own eyes, that's all gone away. I've taken it all away from you. लेकिन अब तू अपनी निगाह में बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने तेरे हाथ से ये ले लिया है। So, here's the same scenario, when we're small in our own eyes. And so here we see Jesus saying, hey, what is it? Don't you get it? यहाँ पर भी वही बात थी। प्रभु से कह रहे थे, क्या तुम्हें समझ नहीं है? You don't understand my word. You don't apply yourself to my word. You don't tremble at my word. तुम मेरे वचन पर विश्वास नहीं करते, तुम मेरे वचन पर ध्यान नहीं देते, तुम मेरे वचन के सामने घबराते नहीं। And thereby you come across as so foolish. Another word is dumb. और उसका यह नतीजा निकलता है कि तुम बेवकूफ़ बन गए हो, तुम्हें समझ नहीं है। They say typically you say, hey, why are you so stupid? Or stupid is another way. और कहेगा, अरे क्यों इतना तू बेवकूफ़ है, ना समझ। Hey, don't you get it? You're driving down the wrong side of the road. Are you stupid? अरे तुझे समझ नहीं है, तू सड़क की उल्टी तरफ चला रहा है गाड़ी को, क्या तू बेवकूफ़ है? Well, sometimes we're very stupid when we go against God's word. बहुत बार जब हम परमेश्वर के वचन के उल्टा जाते हैं तो बड़े मूर्ख बन जाते हैं हम। And the outcome is what we deserve. We get what we do. उसका क्या नतीजा निकलता है? उसका परिणाम वही होगा जो हमने किया। And so here we see, what was Jesus saying? Hey, you're just, oh fools and slow of heart to believe. ये मूर्ख, निर्बुद्धियों और विश्वास करने में मतिमंद लोगों, To believe God's word. When you believe God's word, you act on it. जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो तो उसके हिसाब से चलते हो। You obey it. You reverence it. उसका पालन करते हो, उसका सम्मान करते हो। Oh boy, I got an email recently. हाल ही में मुझे एक ईमेल मिला। The time of prayer is at this time and people come late, or the service, people come late. This is from the other side of the world. I got this email. मुझे ये ईमेल मिला दुनिया के दूसरे भाग से। ये समय प्रार्थना का है, लेकिन लोग देर से आते हैं, देर से उसमें भाग लेते हैं, देर से प्रार्थना में पहुंचते हैं। And it's interesting. Our brother, one of the brothers wrote, say, hey, people come late and I tell them to be on time. और भाई ने कहा कि लोग देरी से आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ भाई तुम समय पर आओ। But you know what they replied? And he sent me their email. They said, oh, you know what? At the company, we all work remote. This is what he said. और जवाब क्या आया? उन्होंने जवाब क्या दिया? अरे हम कंपनी में तो दूर से काम करते हैं। It's amazing how stupid they are. But anyway. कैसी मूर्खता की उन लोगों ने बात कही। Currently at our jobs, we all work remote, and so we can, the kids are playing around, and we can, just do things at our own pace. हाँ, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, हम अपने काम को अपने गति से, अपने हिसाब से कर सकते हैं। This was obviously someone who worked in IT. ये बात ऐसी नज़र आ रही है कि ऐसे लोग हैं जो आईटी में काम करते होंगे। And so here he was giving excuses why not to be on time. और यहाँ पर ये बहाने बना रहा है कि क्यों वो समय पे नहीं आ रहा है प्रार्थना में।
because the service was being held on Zoom because of the coronavirus. और कोरोना वायरस के कारण से आराधना सभाएं जूम के ऊपर करनी पड़ रही हैं। To be on time, hey, I should be able to mosey in when I want, when the kids allow me, when they stop misbehaving. And then I'll come and join, otherwise, I'll come when it's convenient for me. अरे बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे तंग करें, जब ये माहौल ठीक हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा, तब मैं प्रार्थना में जुड़ जाऊंगा, या जब मुझे सुविधा होगी, जब मुझे लगेगा अभी सुविधाजनक है, उस टाइम पे मैं प्रार्थना में जुड़ूंगा। Hey, by the way, that's how it works at work, when I do my IT projects. आप जानते हैं मेरे काम की जगह भी ऐसे ही होता है। मैं अपने जब आईटी का प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ ना, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। That's why sometimes, you have to be very, very careful. You don't give your jobs to the lowest bidder. इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि आप अपना काम ऐसी कंपनी को मत दो जो सबसे कम कीमत पर करने के लिए तैयार है। Because you get what you pay for. क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आपने चुकाया है। You want a shoddy job? Give the job to the lowest bidder. They'll give you, guarantee a shoddy job. आप बेकार काम करवाना चाहते हो, आप दे दो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, वो निश्चय आपको बड़ा नीचे स्तर का काम करके देंगे। And so, when I read this email, I said, I don't believe it. और जब मैंने ईमेल पढ़ी, मैंने कहा मुझे भी उस पर विश्वास नहीं होता। And I wrote back to our brother saying, no, we have to honor God. मैंने भाई को वापस लिख के भेजा, नहीं, हमको परमेश्वर का आदर करना है। That's not going to change. Service should always start on time. परमेश्वर की आराधना में देरी नहीं करनी है, समय पर, जो समय है उस समय पे प्रभु की आराधना शुरू होनी चाहिए। And so just this last week I wrote to him, hey, we'll pray that God will give you grace to deal with these dummies. I didn't say that, but deal with these guys. मैंने उनको जवाब दिया, प्रभु आपको अनुग्रह दे, इस तरह के लोगों के साथ आप कैसे व्यवहार करो। That's what happens, when you disregard God's word, you come across as a dummy. जब आप परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करते तो आपको मूर्ख लोग ही मिलेंगे। Hey, but you know what? They allow that at work. Hey, they might allow that at your cheap type operations. तो कहेगा हमारे काम की जगह तो करने देते, हमको ऐसा देरी से आने देते, सब कुछ है। अरे बेकार की जगह है तो सब ऐसा करने देंगे। Which let you do with no accountability, would let you do whatever you want to do, with no output whatsoever. And if there's output, it's trash. ऐसी जगह जहाँ हिसाब नहीं रखा जाता, हिसाब नहीं मांगा जाता, वहाँ की पैदावार, वहाँ का भी उत्पाद जो होगा, जो काम बाहर निकलेगा, वो भी बेकार का ही होगा। Yeah, but don't bring that type of thinking into the presence of God. लेकिन इस तरह की सोच को परमेश्वर की सन्निधि में मत लाओ। That's the point. We think we're big. We think we're great. और बात यही है, हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हमें बड़ी समझ है। And hey, God will get the crumbs. Whatever's left over. और जो चूरा बचेगा वो दे देंगे परमेश्वर को, जो बचा खुचा होगा ना। And we come across and we look really stupid. और हम ऐसा करने में बहुत बड़े मूर्ख बन जाते हैं। And so here we see the Lord said, hey, you don't believe my word. यहाँ प्रभु ने कहा रे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। And what the prophet spoke about, you haven't believed them. That's why you're in the plight of being so full of despair and sadness. तुमने जो नबियों ने बात कही थी उस पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए तुम आज इस निराशा भरी हालत में पहुंचे हुए हो। Why? Because you never believed my word. ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया। You're in your pit or in your ditch
because you never obeyed my word. तुम आज अपने गड्ढे में गिरे हुए हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी भी मेरे वचन का पालन नहीं किया। You know, it's so true. The prodigal son, he ended up in the ditch of the pigsty. ये बात सच है। वो उड़ाऊ बेटा वो सूअरों की चरनी में जाके पड़ा। Why? He didn't care for his father's word. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता के बातों पर ध्यान नहीं His दिया। father, at the father's table, there was plenty, but there was warning too. पिता की भोजन की मेज पर बहुत था, लेकिन वहां पर चेतावनी भी थी। But he didn't pay attention to the warning. He wanted to do whatever he wanted to do. लेकिन वो चेतावनी पर ध्यान नहीं देना चाहता था, वो अपनी मनमानी करना चाहता था। So he took off, wasted everything he had, that tremendous heritage. He threw out the door, squandered it. तो उसने क्या किया? अपनी सारी संपत्ति ली, विरासत ली और वहां से निकल गया और सारी की सारी बर्बाद कर दी। And then end up in the ditch. और आखिर में गड्ढे में गिरा। You know, when we squander God's word, when we have God's word in our lives and squander it, that's exactly what happens. We end up in the pigsty. जब हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने अपना वचन दिया हो और हमने उसके ऊपर जरा सा ध्यान नहीं दिया, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? आखिर में हम सूअरों की चरनी में ही पाए जाएंगे, उस गड्ढे में ही हम पहुंचेंगे। And so what happened? तो क्या हुआ? Here, then Jesus, what was the scriptures? Let's turn to Matthew chapter 16. मत्ती के 16वें अध्याय पर हम ध्यान देंगे। Jesus saying, hey, why are you so slow believing my word? That's why you're sad. You're full of despair. You think the heavens are falling. प्रभु ने कहा, तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम बड़े दुख में हो, इसलिए तुम बड़ी निराशा में, तुम्हें लगता है कि आकाश टूट के तुम्हारे ऊपर गिर रहा है। And Matthew chapter 16. मत्ती 16वां अध्याय and verse 21. और 21वां पद। From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem, suffer many things of the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and be raised again the third day. मत्ती 16 का 21। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीन मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊंगा। So here Jesus had told his disciples this was going to happen. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बता दिया था कि क्या होने वाला है। But maybe the disciples thought that was fake news. लेकिन हो सकता है चेलों को लगा होगा ये तो झूठी खबर है। The words of Jesus is fake news. यीशु की बातें तो झूठी खबर नजर आती हैं। And then verse 22. Peter took him, began to rebuke him, say, Be it far from thee, Lord, this shall not be done, be unto thee. 22वां पद। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और ये कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी भी न होने पाए। So sure enough, here the Lord had told his disciples what was going to go on, that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders, chief priests and scribes, be killed, and raised the third day. और प्रभु ने बात कही थी, निश्चय ये बात उन्हें बताई थी क्या होने वाला है, कि कैसे वो यरूशलेम जाएंगे, प्राचीन मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ दुख उठाएंगे और मार डाला जाएंगे और तीसरे दिन जिलाए जाएंगे। Jesus' words were true. यीशु की बातें सच थीं। Peter kind of could not comprehend or understand it. He rebuked the Lord. Hey, Lord, you don't know what you're talking about. और पतरस ने That's not going to happen to you. और पतरस प्रभु को अलग लेकर झिड़कने लगा, बोला, नहीं नहीं, ऐसा तेरे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए तेरे साथ। You know what Jesus said? Verse 23, Get thee behind me, Satan. अब जानते यीशु ने क्या Thou कहा? art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. 23वां पद। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। So here, the Lord was saying, hey, Peter, the way man thinks for you is more important than God's plan.
प्रभु ने पतरस को कहा, देख पतरस, तेरे लिए ये ज़्यादा तू इस बढ़कर मानता है कि आदमी क्या क्या सोच रहा है, इससे बढ़कर कि परमेश्वर की योजना क्या है। You know, thou savors not the things that be of God. तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा। You know, that you don't honor, you don't love the things which God loves. तू उन चीज़ों से You प्रेम love the things which man loves. तू उन चीज़ों से नहीं करता है जो परमेश्वर करता है, लेकिन तू उन चीज़ों से प्रेम करता है जो आदमी करता है। So, you know, Peter was rebuked. Get behind me, Satan. पतरस को ऐसी डांट पड़ी, शैतान पीछे हट। You know, hey, think about it. Jesus was pretty tough. जरा सोच He के देख। wasn't a wuss. A wuss is a sissy. और प्रभु यीशु तो ऐसे नरम नहीं थे, यहाँ पे बड़े कड़क थे। You know, someone like a grandpa, you know, where the grandkid can do anything. दादा दादी नाना नानी जो नाती पोता है वो कुछ भी कर सकता है। You know, run on the dining room table, you know, with the food on it. Oh, my little grandson. और नन्ना बच्चा है, ऊपर डाइनिंग टेबल पे चढ़ जाएगा, खाना रखा हुआ है लेकिन उसके बीच में दौड़ेगा। Hey, get off that table. That's where the food belongs. अब उस मेज से नीचे उतरो, वो खाना रखने की जगह है और तुम्हारे दौड़ने की जगह नहीं है। You shouldn't be running on a table. वो टेबल पे नहीं दौड़ना चाहिए। Well, oh, my little grandkid. Oh, man, Dada- look, isn't he real cute? Kicking the food around on the table. दादा दादी बोलेंगे, अरे कितना मेरा मासूम सा बच्चा है, ऐसे वो बच्चा पैर मार रहा है, खाने को चारों तरफ फेंक रहा है, नहीं कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है। You know. Yeah, what did Jesus say? You know, he called, oh, fool and slow of heart, fools and slow of heart to believe. यहाँ प्रभु यीशु ने क्या कहा, अरे तुम इतने मूर्ख हो और समझ में इतने धीमे हो। Then, the flip side, Jesus said to Peter, get behind me, Satan. He called him a Satan. और दूसरी ओर प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, हे शैतान पीछे हट। उन्होंने पतरस को शैतान कहा। You know, you're not savoring that which, you don't honor my plan, my thoughts, God's plan, God's thoughts. परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजनाओं को तू सम्मान नहीं दे रहा। You think it's foolishness, तेरी निगाह में ये बेवकूफ़ी की बात नजर आ like रही the है, devil. जैसे शैतान मानता है। So get behind me, Satan. Get out of my way. Get behind me. इसलिए शैतान पीछे हट, मेरे रास्ते से हट जा। Because Jesus had set his heart to Jerusalem. क्योंकि प्रभु यीशु ने तो अपना दिल मन लगाया था यरूशलेम जाने के लिए। He was, you know, God's will is not our will. God's way is not our way. परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा नहीं है, परमेश्वर का तरीका हमारा तरीका नहीं है। Many times God's way is foolishness to us. बहुत बार परमेश्वर का तरीका हमें बेवकूफ़ी नजर आता है। You know, God has his plan of action, his methods to do what he wants to do in his great plan. परमेश्वर But for अपनी many of us, it's foolishness. परमेश्वर अपनी बड़ी योजना में अपने तरीके से उसको करता है, लेकिन बहुतों को वो मूर्खता नजर आता है। Why? Because we're dumb. We don't believe his words. ऐसा क्यों? We're foolish. क्योंकि हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम उसके वचन पर Because विश्वास we're नहीं slow करते। to believe. हम उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करने में धीमे हैं, इसलिए हम मूर्ख हो जाते हैं। And then Jesus said, after he called Peter Satan and rebuked him, और जब प्रभु यीशु ने पतरस को डांटा, उसे शैतान कहा, उसके बाद उन्होंने कहा, you know, people don't like rebuke. The Bible's full of rebuke. लोगों को डांट पसंद नहीं है, बाइबल तो डांट से भरी हुई है। To whom the Lord loveth, he chasteneth, says God's word. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। You know what? I'll tell you, people can preach God's word, but then when it comes to correction, oh boy, the लोग top blows off. लोग परमेश्वर का वचन के प्रचार की बात करो, प्रचार कर देंगे, लेकिन जरा सी डांट मारी, उनका पारा चढ़ जाता है।
Hey, you know what? Being willing, when we have a humble heart, we take correction. जब हमारा नम्र दिल होगा, We learn much faster. जब हमारा दिल नम्र होगा, हम डांट को सुनेंगे, हम जल्दी से सीख जाएंगे। That's why when we're slow of heart, maybe stupid, लेकिन जब हम समझ में धीमे हैं, मूर्ख हैं, because of our pride, I know better. हमारे घमंड के कारण, क्योंकि हम सोचते हैं मुझे ज़्यादा मालूम है। No, you and me don't know better than God's word. नहीं, मैं और आप परमेश्वर के वचन से ज़्यादा नहीं जानते। Here we see what did Jesus tell his disciples. यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा। Verse 24, if any man will come after me. 24वां पद, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे He आना had चाहे। just told Peter to get behind him. Satan. मत्ती 16 का 24, यहाँ पर प्रभु ने अभी अभी पतरस को डांटा था और कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो। Then Jesus said, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. तब यीशु ने अपने चेलों को कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। You know, what was strange in Peter when the Lord was telling about going to Jerusalem and being crucified? और जब प्रभु इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें यरूशलेम जाके क्रूस पर मरना है, तो पतरस में क्या अलग बात थी? Peter couldn't understand it. पतरस को समझ में नहीं आया। Jesus said, hey, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। We know, we don't want to take up our cross. We don't want to be despised. We don't want to be rejected of men. हम अपना क्रूस नहीं उठाना चाहते, हम लोगों के सामने नीचा नहीं होना चाहते, हम लोगों के द्वारा त्यागे नहीं जाना चाहते। Jesus was rejected of men. He लोगों was ने despised. He was mocked at. लोगों ने यीशु को त्यागा, लोगों ने यीशु को तुच्छ जाना, उनका मजाक उड़ाया। We don't want to do that, but Jesus is saying, Jesus went through it. और हम ये चाहते And हैं, he was resurrected the third day. और यीशु उससे गुजरे, उन्होंने बात कही और तीसरे दिन जी उठे। Jesus said, hey, if any man shall come after me, let him deny himself. और प्रभु ने कहा कि अगर कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, We don't अपना want to त्याग deny करे। ourselves of our comforts, of our what we want to do, to do what God wants us to do. We don't want to put away our ways for God's ways. हम वो नहीं करना चाहते जो परमेश्वर चाहते हैं, अपने आराम को हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर के तरीके से नहीं करना चाहते, अपने तरीके से करना चाहते हैं। Let him deny himself, put your ways away, put your thoughts away from my ways. अपने तरीकों को छोड़ दो, अपने जरियों को, अपनी सोच को छोड़ दो और मेरी सोच और मेरे तरीकों का इस्तेमाल करो। Take up your cross and follow me. It's not going to be easy. You're going to go up against the crowd. You're going to be despised of men, talked evil of. तुम अपना क्रूस उठाकर चलो, लोग तुम्हें तुच्छ जानेंगे, लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, लोग तुम्हें नीचा समझेंगे। But take up your cross and follow me. लेकिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। Then Jesus said, the outcome, and whosoever will save his life will lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. और उसका क्या नतीजा निकलेगा? 25वां पद, मत्ती 16वां अध्याय 25वां पद, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। It looked as if Jesus was going to lose his life. Yeah, he was going to lose his life to find it. और ऐसा लग रहा था यीशु अपने प्राण खोएंगे। ये निश्चित था कि प्रभु ने अपने प्राण खोए ताकि उन्हें दोबारा पाले। He was resurrected the third day. और तीसरे दिन वो जी उठे। But many times we don't want to lose our life. लेकिन बहुत बार हम अपना जीवन नहीं खोना चाहते। Whosoever will save his life will lose it. We want to save our lives. जो कि अपनी जान बचाएगा वो खोएगा। हम अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं। Hey, I'll tell a white lie to get
get out from a tough situation or इस बात से बचने के लिए मैं एक थोड़ी सफ़ेद झूठ बोल देता हूँ, तो इस कठिन हालत से निकल जाऊंगा। a lie, it's amazing, India is full of lies, there's lies all over the world, but some nations are full of it. सारी दुनिया में झूठ है, लेकिन कुछ देश तो झूठ से भरे हुए हैं। And so, where does God change? At the cross, the Lord changes the lying tongue to a truthful tongue. और क्रूस से जहाँ पर प्रभु झूठ बोलने वाली जबान को सच बोलने वाली जबान में बदलता है। And here we see Jesus said, whosoever will save his life shall lose it. और यहाँ ईश्वर का जो कोई अपनी जान बचाएगा वो खोएगा। So if you live a selfish life, oh, yeah, I have to do things to make myself secure. I have to do things to pander to myself. अगर हम ये सोचें अरे मुझे तो भाई अपना ख्याल करना है, पहले अपने आप को संभालना है, अपने आप को सुरक्षित करना है। Whosoever shall save his life shall lose it. जो कोई अपने प्राण बचाएगा वो खो Whosoever बैठेगा। loseth his life for my sake shall find it. और लेकिन जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोता है उसे पा लेगा। Lord, I don't want my will. I don't want my way. I want your thoughts, your way. It might be the hard way, but I want your way. प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, अपना तरीका नहीं चाहता। प्रभु मैं आपकी इच्छा, आपका तरीका चाहता हूँ। हो सकता है वो थोड़ा कठिन हो, फिर भी मैं वही चाहता हूँ। Many people don't want God's way in their life. बहुत से लोग परमेश्वर के रास्ते को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। And so God says, hey, if you don't go my way, you'll lose your life. But if you go my way, you'll find your life. प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं जाओगे तो अपनी जान को खो बैठोगे, अगर मेरे रास्ते से जाओगे तो तुम उसे बचा लोगे। For what, then Jesus went on to say, so what is a man profited if he gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? मत्ती 16 का 26, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए तो उसे क्या लाभ, अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। So in other words, Jesus said, hey, what does it gain you if you gain the whole world? और प्रभु बोले अगर तू सारी दुनिया को भी पा ले तो तुझे क्या फायदा होने वाला है। And lose your own soul, you end up in hellfire. What have you gained? Nothing. और तुम्हारी आत्मा जाके नरक की आग में गिर जाए, तुमने क्या हासिल किया? कुछ फायदा नहीं हुआ तुमको, कुछ हासिल नहीं किया तुमने। And so verse 27, the Son of Man shall come in his glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. और 27 वक्त, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब वह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। So according to our doings, not according to our words. हम क्या कहते हैं उसके हिसाब से नहीं, हम क्या करते हैं उसके हिसाब से। Words are cheap. हमारी बातें बड़ी सस्ती हैं। Jesus said that himself. खुद प्रभु यीशु ने बात Why do कही। you say Lord, Lord, and do not what I say? तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, और जबकि जो मैं कहता हूँ वो तुम करते नहीं। So you're saying you're serving me with your lips, but your heart is far from me. तुम अपने होठों से तो मेरी सेवा करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बड़ा दूर है। Jesus is interested in what we do, not what we say. प्रभु यीशु इस बात में ज्यादा रुचि रखते हैं कि हम क्या करते हैं, खाली बातें करना, हमारी बातों पे ध्यान नहीं है उनका। So Jesus said, the Son of Man shall come in his glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. 27वां पद, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब वह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। What you did, what we do. तुमने क्या किया, जो हम करते हैं उसका प्रतिफल। According to that are we rewarded.
by God. उसके हिसाब से परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। You know, and when you're rewarded by God, it's not in any comparison to how man rewards man. परमेश्वर का प्रतिफल उस वक्त से उससे बड़ा अलग होता है जो आदमी प्रतिफल देता है। You know, hey, I want to, hey, you've done a great job, you get a promotion. Well, what's that promotion? अरे तूने बड़ा अच्छा काम किया, मैं तेरे को अभी थोड़ी तरक्की दे देता हूँ। क्या है वो तरक्की? Maybe a little more responsibility in the company, maybe a little more money. हो सकता है कंपनी में थोड़ी और जिम्मेवारी या थोड़े और पैसे दे दिए। But when God, you know, when God rewards, it's far greater. लेकिन जब परमेश्वर प्रतिफल देते हैं वो उससे कहीं बढ़कर होता है। I think when God found Joseph faithful in his life, he was found in prison, but God found a faithful young man. जब परमेश्वर ने यूसुफ को देखा, पाया, हालांकि वो तो जेल में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पाया। So guess what? Second in command. तब देखिए क्या हुआ, देश का दूसरे नंबर का Pharaoh अधिकारी। said, hey, Joseph, you come up and there can't be a better person I can entrust. और राजा फिरौन बोला, अरे यूसुफ तू ही इस जिम्मेवारी को ले, तेरे से बेहतर आदमी मुझे नहीं मिलने वाला। This whole land of Egypt into your hands to execute based on the dreams I had. और देख, मैंने से जैसा सपना देखा उसके हिसाब से इस मिस्र देश के ऊपर सारी कार्रवाई तू ही उसको पूरा कर। Plenty, 7 years of plenty, 7 years of famine. 7 साल की भरपूरी और 7 साल का अकाल। You executed, and he gave it to Joseph. He handed it to Joseph. Yeah, here, you take care of it. तो उसने वो जिम्मेवारी यूसुफ के हाथ में दे दी और कहा तू इसको संभाल। You know, he could be trusted. वो भरोसेमंद था, He could be relied on. उस पर भरोसा किया जा सकता था। He was dependable. वो भरोसेमंद आदमी था। Why? Because Joseph followed God, who you can rely on, who's dependable. क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा मानता, उसके पीछे चलता था। ऐसे आदमी पर आप भरोसा कर सकते हो, ऐसे आदमी के ऊपर आप निर्भर रह Joseph was सकते हो। accountable because the Lord is accountable. वो अपने हिसाब में ईमानदार था, क्योंकि परमेश्वर का के साथ चलने वाला हिसाब में ईमानदार रहता है। And so what happened? तब क्या हुआ? You know, Joseph was rewarded. और यूसुफ को ये इनाम मिला। So, you know, whether we're rewarded here on earth or rewarded after we pass away, इनाम चाहे हमें यहाँ धरती पे मिले या हमारे धरती से गुजर जाने के बाद, you know, that's all in God's hands. वो सब परमेश्वर के हाथ में है। But the Lord says, when the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward it. और यहाँ प्रभु ने कहा मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ पिता की महिमा में आने वाला है और हर एक मनुष्य के उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। To his words. क्या वो हर एक मनुष्य को उसके बातों के अनुसार प्रतिफल देगा? No, it doesn't say that. नहीं, ये ऐसा नहीं कहता। According to his works, according to what we do. उसके कामों के हिसाब से उसको प्रतिफल देगा, जो हम करते हैं उसके हिसाब से। Hey, did you do anything for me? You know the song, this क्या तूने मेरे लिए कुछ किया? ऐसा एक गीत है the girl sang was, you know, जो बच्चियों ने गाया। however simple we might be, हम कितने ही सीधे साधे हों, to do something for the Lord. फिर भी प्रभु के लिए कुछ न कुछ करें। Whether it be, you know, something like singing the choir, playing the band, that's just the words in the song. चाहे हम गीत मंडली में गीत गाएं या गाजे बाजे बजाएं, वो तो खाली एक गीत है। But the whole meaning of the song is, लेकिन सारे गीत का अर्थ ये है, hey, although I might be just a simple person, मैं कोई सामान्य आम आदमी हो सकता हूँ, that doesn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता। It's what I do for the Lord which counts. मैं प्रभु के लिए जो करता हूँ उसी का मायना है। And so here the same thing in the scriptures, shall reward every man according to his deeds, his works. और यहाँ प्रभु ने अपने वचन में यही बात कही है कि हर एक आदमी को उसके काम के हिसाब से प्रतिफल दूंगा। What did you do for me? तूने मेरे लिए क्या किया? You know, so the song said,
you know, when I get up there, they'll say, hey, what did you do for me while you were down there? Did you do anything for me? जैसा गीत में कहा कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो पूछा जाएगा कि तूने मेरे लिए क्या किया, जब तू नीचे धरती पर था मेरे लिए क्या किया तूने। Oh Lord, I lived my life हे प्रभु, full of myself, my hobbies, my plans, प्रभु मैंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी रुचि को पूरा करने में बिताई। my comfort, my this, that, and the other. मैंने अपने आराम को देखा, अपनी सब बातों पर ध्यान दिया। I paid you no attention. I did nothing for you. मैंने तुझ पर ध्यान नहीं दिया और तेरे लिए कुछ नहीं किया। Or, या Lord, हे प्रभु, I walked in your ways, and whatever you gave me, however little it might be, प्रभु मैं तेरे रास्तों पर चला, जो छोटी छोटी भी जिम्मेवारी तूने मुझे दी I placed in your hands. मैंने उसको आपके हाथ में रखा। You know? And then the Lord is going to say, hey, well done, thou good and faithful servant. तो प्रभु कहेगा, हे भले और वफादार सेवक, शाबाश। You know, so ultimately, it's our focus. और आखिर में ये बात है किस पर हमने ध्यान दिया। Our focus is going to be on the plan of God, the thoughts of God, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के विचारों पर हमको ध्यान लगाना है। Lord, what do you have for me to accomplish for you in this short life on earth? धरती पे छोटी जिंदगी में प्रभु तू क्या चाहता है, मैं क्या हासिल करूं तेरे लिए। I'm at your service. मैं तेरी सेवा में हाजिर हूं। And then when we do according to that, God does great things. जब उसके हिसाब से हम करते हैं तो परमेश्वर बड़े काम करते हैं। And so he rewards us accordingly. उसका प्रतिफल उसी हिसाब से वो हमको देता है। Reward us according to his shall. और उसको उसके हिसाब से प्रतिफल देगा। And then shall he reward every man according to his works, what we did. जो हमने किया उसके हिसाब से प्रभु हर एक आदमी को उसका प्रतिफल देगा। You know, and so verily I say unto you, there shall some standing here which shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. 28वां पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यहाँ खड़े हुए में से कुछ जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ न देख ले, मौत का स्वाद न चखेंगे। So here we see, you know, Lord was, his thinking was spanning eternity, God's plan. यहाँ प्रभु की बातें अनंत काल की थी, उसकी योजना के हिसाब से। And that's how he executed, and that's how his thoughts were. और प्रभु ने ऐसे ही कार्रवाई की, ऐसे ही उसकी सोच विचार थे। And that's what the message is all about, eternal plan of God. और सारा जो संदेश है उसी पर आधारित है, परमेश्वर की सनातन योजना। So we either fit into the eternal plan of God या तो हम परमेश्वर की सनातन योजना के भागीदार बनते हैं by obeying him such that, Lord, you know, you gave me this talent, I put it in your hands, you blessed it. और उसकी योजना के अनुसार, प्रभु ये योग्यता आपने दी, मैंने इसको आपके हाथ में रखा, आप इस पर आशीष कीजिए। So, you know, in our lives, इस तरह हमारी जिंदगी में, you know, it goes back to believing in the word of God. और बात उसी पर आधारित होती है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। You know, O fools, slow of heart to believe all that the prophets have spoken. हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों। Hey, you believed the bluff of the world, you didn't take my word seriously. तूने दुनिया की झूठ पर पूरा ध्यान दिया, लेकिन मेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया। You know, and so thereby you're full of sadness and despair. इसीलिए तू आज बड़ा दुखी है और निराशा से भरा है। But if you take my word seriously, if you follow me, लेकिन अगर तू मेरी बात को गंभीरता से लेता है, मेरे पीछे चले। you know, hey, they thought they could put me down in the grave, but guess what? देख, ये लोग सोचते थे मुझे कब्र में दफना देंगे, लेकिन देख क्या हुआ। I'm walking with you today, you know, and so Jesus told his disciples, hey, he revealed himself. और उसके बाद प्रभु ने अपने आप को उन पर प्रकट किया, देख इन्होंने मुझे दफनाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ आज। Hey, didn't I tell you I was going to go to Jerusalem, go to the cross? अरे क्या तुमको बताया नहीं था कि हम यरूशलेम जाएंगे
और मुझे क्रूस पर चढ़ना है, be crucified and rise the third day. क्रूस पर मरना है और फिर उसके बाद तीसरे दिन जी उठना है। And hey, by the way, you know it happened, and here I am. I'm risen. और देख, ऐसा हुआ तुम्हारे साथ और देख मैं दोबारा जी उठा हूँ। So it's amazing ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है। when the world is so full of despair जब दुनिया इतनी निराशा से भरी हुई है, and sadness, उदासी से, and the whole thinking of man is so defeated, defeated as it were. और सारी की सारी सोच हार मान के बैठी हो ऐसा नजर आता है आदमी की। Jesus said, "Hey, I've risen. यीशु ने कहा, देख मैं जी उठा हूँ। All evil forces would try to keep me down in the grave. सारी बुराई की ताकत जो मुझे कब्र में दफनाए रखना चाहती थी, Hey, evil will never prosper. बुराई कभी कामयाब नहीं होगी। It'll be put down where it belongs. जहाँ उसकी जगह वहीं पर वो रख दी जाएगी। And here I am, और देख, walking with you. देखो अब मैं तुम्हारे साथ चल फिर रहा हूँ। Yeah, I said I was going to rise the third day. देखो मैंने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। And then the disciples' understanding was open. और तब चेलों की समझ खुली। Then they came up to understand the scripture, as understand the Lord's words. तब चेले प्रभु के वचन को समझ पाए और वचन को समझ पाए। And then, understand the big picture. और उस बड़ी तस्वीर को समझ पाए। When we humble ourselves before God, guess what? जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं तब देखो क्या होता है। We're quick to understand the big picture. God opens to us the big picture. और परमेश्वर बड़ी तस्वीर के दृश्य को हमारे सामने खोल कर हमको दिखाता है। Hey, I know your mind's very, very small. मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग बड़ा छोटा है, based on your own experience तुम्हारे अपने अनुभव के and आधार your पर own small little peanut understanding. और तुम्हारी मूंगफली जैसी छोटी समझ के आधार पर। But I'm going to open your eye. लेकिन देखो मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा, I'm going to open your understanding. मैं तुम्हारी समझ को खोलूंगा, I'm going to open up your thoughts to my great plan मैं तुम्हारे विचारों को अपनी महान योजना के लिए खोलूंगा and roll them out before you. और तुम्हारे सामने उनके खोल के बिछा दूंगा। And so that's the whole thing. और यही सारी बात है, Believing in the words of Jesus. यीशु की बातों पर विश्वास करना। So could anyone hold Jesus down? Of course not. कोई भी यीशु को दबा के रख पाया? बिल्कुल निश्चय नहीं। Evil can't hold that which is good down. बुराई कभी भी भलाई को नीचे दबा के नहीं रख सकती। Can't be done. ये संभव ही नहीं है। They thought evil could hold Joseph down, right? उन्होंने सोचा बुराई यूसुफ को दबा के रखेगी, ठीक है ना? Accuse him of things he didn't do. उस पर ऐसा दोष लगा दो जो उसने किया भी नहीं है। Hey, Joseph, you attacked Potiphar's wife. ए यूसुफ, तूने पोतीफर की पत्नी पर Man, हल्ला किया, go to prison. देख अब तू जा जेल में। Hey, I didn't do that. अरे मैंने ऐसा नहीं किया है। They accused Jesus falsely. He didn't. उन्होंने यीशु पर भी झूठा आरोप लगाया, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। He didn't. He wasn't culpable for all his accusations. जो भी उन पर दोष लगाए, कोई भी अपराध उन्होंने नहीं किया था। But could the Roman government keep Jesus down? क्या रोमी सरकार यीशु को नीचे दबाए रख सकी? They tried to. They tried to send centurions to guard the tomb. उन्होंने कोशिश की, उन्होंने सूबेदार को भेजा कब्र की रखवाली करने के लिए, But that was of no ill effect. Those guys, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। tremble when the angel came and rolled the stone away. जब सरदूत आकर उन्होंने जब पत्थर को लुढ़काया तो सारे पहरेदार कांपने लगे। When God's word moves forward, there'll no one stand in the way. जब परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता है तो रास्ते में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। Of the word of God going forward, the plan of God. परमेश्वर के वचन की बढ़त
और परमेश्वर की योजना के बढ़ावे को कोई रोक नहीं सकता। And so, are we going to be part of the plan of God? It all depends on, क्या हम परमेश्वर की योजना के भागीदार होंगे, ये सब इस बात पर निर्भर करता है। and then He shall reward every man according to his works. You know what we do. और तब परमेश्वर हर एक आदमी के काम के हिसाब से उसे फल देगा। Do we believe in God's word? क्या हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा और- करते हैं? For us, God's word is fake news, and the trash of the world is real. हमारे लिए परमेश्वर की योजना तो झूठी खबर है और दुनिया की खबरें हमारे लिए बड़ी सच्ची हैं। ऐसा है, It's either one or the other. या तो बात एक है या दूसरी है, But दोनों here में we से see, एक। it's amazing. The Lord opened the eyes of the disciples लेकिन यहाँ बड़ी अद्भुत बात है, प्रभु ने अपने चेलों की आंखों को खोला, to understand the big picture. बड़ी तस्वीर को उनके सामने खोल के In रखा, our वो समझ lives, we सके। can be so consumed with our small thinking, our small minds, हम अपनी छोटी सोच, छोटी समझ के में इतना ही उसमें लगे रहें, our small backgrounds, our small this, small that. हमारी छोटी पृष्ठभूमि, छोटा ये छोटा वो। But God wants to open to us the scripture. लेकिन प्रभु अपने वचन को हमारे सामने खोलना चाहता है। He wants to open to us His big thoughts and plans for us in our life. हमारी जिंदगी में अपनी बड़ी योजना को, अपने बड़े विचारों को खोलना चाहता है। If we're humble to listen अगर नम्र हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, and then obey step by step, and कदम दर कदम अगर उसका पालन करने के लिए तैयार हैं, He rolls out His great plans तो अपनी बड़ी योजना को वो खोल के बिछा देता है। as we do His will. That's the key. और खास मुख्य बात ये, जब हम उसकी इच्छा पूरी Not करते हैं, our will, His will. उसकी मर्जी पे चलते हैं, अपनी मर्जी पे नहीं चलते, And then ultimately we'll be rewarded based on our obedience to Him. और आखिर में उसकी बात को जितना माना उसके हिसाब से हमको Let us फल pray. मिलेगा। आइए प्रार्थना Lord, करें। we thank You for Your great plans for each and every one of us. प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरा, हम में से हर एक के लिए तूने अपनी बड़ी स्तोत्र। योजना बनाई है Obey Your living word. कि आपके जीवते वचन का पालन करें। Thank You how You opened up the understanding of the men, your disciples, प्रभु कैसे आपने चेलों की समझ को आपने खोला, as they were sad and full of despair. जो उदास थे और बड़े निराश Thank थे। You, your risen Savior. आप तो जी उठे मुक्तिदाता, You आपका don't धन्यवाद want us करते हैं। walking around in sadness and in our despair, जब चारों तरफ बड़ी निराशा उदासी में चारों तरफ लोग चल फिर रहे हैं, but when you say, "Hey, I got such a great plan for you. Why are you full of despair? Why are you so sad?" लेकिन आप कहते हो, अरे जब मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी अच्छी योजना बनाई है, तुम क्यों उदास हो, क्यों निराशा में इधर उधर जा रहे हो? Look up and ऊपर look at देखो, my plan and follow me. मेरी योजना को देखो और मेरे पीछे चलो। Take up your cross and follow me. अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। Lord, we want to take up our individual cross and follow You प्रभु, हम अपने व्यक्तिगत क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलना चाहते हैं and live for You daily in our lives. और हर रोज अपनी जिंदगी में जीना चाहते हैं। We ask all these things in Jesus' name. ये सब हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।